A very warm good morning to my dear student of class 3. Today in Innovative Science, as you all know, we have examinations, we have first term examinations which is going to start on 5th of August. So, now we are going to start our revision of science chapter 2, 3, 4. Children, in your syllabus of science, you are having chapter 2, chapter 3 and chapter 4. First, see what are the chapters which are going to come in your examination. The first is human body, the second is animals, birds, third is animals, common insect. I have already taught you all the answer questions and all the chapter of chapter 2, 3, 4. Now in a revision parts, let's start doing chapter 2. In a human body, you have to learn all the fill in the blanks, time to recall, time to practice, tick the options true and false, match the column, answer question, long answer question, like this. Okay, children, it's very important to start learning this or start revising these chapters because these are one of the important chapters. The full marks in first term examination is 50 marks, and you all know the question will be given in your WhatsApp and you have to answer that questions in your WhatsApp only. Okay, children? So let's start. In chapter 2, time to recall. Fill in the blank. Our body is working even if we are doing nothing. So what is the answer? Working. Okay, children? You just revise with me and you start speaking also so that you will start learning. Our body is made up of many parts called organs. Okay? The skeletal system protect our internal organs of our body. So which system protect our internal organs? Skeletal system. The cells are the building blocks of our body. Okay? The cells are the building block of our body. Fifth, the spinal cord connects all nerves of the body to the brain. The heart, the blood and the blood vessels make our circulatory system. So here we have to learn this one, learn this fill in the blanks. The first one is our body is working even if we are doing nothing. Okay, so answer will be working. Second, the body is made up of many parts are called organ. Our body is made of many parts called organs. Third, the skeletal system protect the internal organs of our body. So what is the system which protect our internal organs? Skeletal system. Okay, learn the spelling skeletal, skeletal system. Okay, now see 4. The cells are the building blocks of our body. Which is are the building block of our body? Cells. Fifth, the spinal cord connects all nerves of our body to the brain. So which connects all the nerves? Spinal cords connect. Okay, children? The heart, the blood vessel make up a circulatory system. तो जहाँ पर भी आपने देखा ना the heart, blood vessel लिखा होगा, what you are going to write? Circulatory system. Okay? So very easy. आप 2 times इसको revise करो. You will revise this one 1 to 6 revise करो 2 times. You will easily able to learn it. Okay? Now let's do the match the call or tick the correct option. Okay? Now which of these makes bone move? Bone हमारा कैसे move करता है? तो in these, ma'am, what will ma'am is going to do? Ma'am is going to ask this question and give 4 options. आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो विच हेल्प आवर बोन्स टू मूव? मसल्स. कौन हेल्प करता है? मसल्स. द ऑर्गन्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो विच ऑर्गन हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड? Digestive system.
विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम? रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? पहले हम रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं ना, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस सिस्टम इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम. तो वी टेक एयर फ्रॉम आवर नोज में लिया, फिर ये विंड पाइप से हमारे लंग्स में गया. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? नोज होता है, विंड पाइप होता है एंड लंग्स होता है. फूड पाइप होता है? नहीं ना. फूड पाइप किसका होगा? डाइजेस्टिव से. तो विच इज नॉट अ पार्ट, ध्यान से देखना क्वेश्चन, इट सेज नॉट अ पार्ट मीन्स फूड पाइप. अंडरस्टैंड? नाउ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज, द स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है लिविंग बीइंग का? सेल. बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारा ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है. तो सबसे छोटा क्या होता है? सेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ब्लड वेसल एंड हार्ट फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम. सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था ना यहाँ पर भी. द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेकअप ए सर्कुलेटरी मोशन. सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है. उसमें क्या है? ब्लड वेसल एंड हार्ट फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो इट्स टाइम टू रिवाइज. मैं आपसे एक एक करके आपसे पूछते जाऊंगी, आप बताना. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द दीज मेक्स बोन मूव? मसल्स. वेरी गुड. द ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प द डाइजेस्ट फूड इज द digestive system. Which of these is not a part of respiratory system? Food pipe. The smallest part of the living being is the cell. Blood vessel, heart form a circulatory system. Understand children? So आपको ये याद हो गया, वो fill in the blank भी याद हो गया. Now it's time to do the revision of our true and false. Okay? Our body would have no shape without skeletal system. True. स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है? हमारे बॉडी को शेप देता है. आप छोटे हो या बड़े हो या लंबे हो, तो आपका बॉडी का क्या शेप होता है? कौन हेल्प करता है? आपको हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम. फूड ट्रेवल्स फ्रॉम माउथ टू द ऑर्गन्स. माउथ से लंग्स जाता है क्या? फूड ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू लंग्स? नहीं ना. माउथ तो कहाँ जाता है? वो स्टमक में जाता है. तो ये फॉल्स है. लंग्स में नहीं जाता, वो स्टमक में जाता है. All living things are made up of cells. All living things क्या सेल से बना रहता है? True. Organs together make a tissue. Organ, सभी organs मिल के एक टिश्यू बनाता है? नहीं, सभी बहुत सारे सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं. So it is false. The spinal cord connect the brain to the nerves. Is it true? Yes. Spinal cord ही connect करता है brain and nerve से. ओके चिल्ड्रन. सो इसको हम लोग फिर से रिवाइज करें. आवर बॉडी वुड हैव नो शेप विदाउट स्केलेटल सिस्टम. टेल मी क्या होगा इसका आंसर? बोलो. ट्रू. फूड ट्रैवल फ्रॉम माउथ टू द ऑर्गन्स. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. वेरी गुड. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ट्रू. 4. ऑर्गन्स टुगेदर मेक ए टिश्यू. नो. फॉल्स. 5th. The spinal cord connect the brain to the nerves. True. So ये भी आपको याद हो गया. चलिए, very good. Now it's time for another one. That is match the column. ठीक है? मैच करते हैं now. आपको इस तरह से कॉलम A and कॉलम B मिलेगा. आप कैसे मैच करोगे? आपको whenever you are getting this match the column, you will write the answer. जैसे स्क्रीटी सिस्टम है तो इसके बगल में आप इसका आंसर लिखोगे. ऐसे क्रॉस नहीं करना है, लाइन नहीं खींचना, वो इट्स लुक अनटाइडी. आप क्या करोगे? कॉलम ए लिखोगे, कॉलम बी लिखोगे, ऊपर में लिखना आंसर ऑफ मैच द कॉलम. कॉलम 1 जैसे स्क्रीटरी सिस्टम, इसका आंसर किडनी होगा ना, तो डैश करके किडनी लिखना है. अंडरस्टैंड? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या होगा? ब्रेन. ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम के लिए. डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड पाइप. वेरी गुड. रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स. मस्कुलर सिस्टम, मसल्स. ठीक है? तो स्क्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स क्या होता है? किडनी. स्क्रीटरी सिस्टम, किडनी. नर्वस सिस्टम, ब्रेन. डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड पाइप. रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स.
मस्कुलर सिस्टम मसल्स। तो देखो फटाफट याद हो गया। स्क्रेटरी सिस्टम का क्या होगा? किडनी। नर्वस सिस्टम का क्या होगा? ब्रेन। डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड पाइप। रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज लंग्स एंड मस्कुलर सिस्टम दैट इज मसल्स। वेरी easy to understand. चलो, so we have done up till the C portion. Now let's do D का 1, 2, 3, 4 and long questions next class. Okay, now let's learn how do our muscles help us to move. How do our muscles help us? मसल्स किस लिए काम आते हैं? तो आप कहाँ से लिखना शुरू करें? मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो याद कितना करना है? बहुत छोटा सा याद करना है, ज़्यादा बड़ा याद नहीं करना है। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? हाउ डू आवर मसल्स हेल्प अस? आंसर क्या होना चाहिए? मसल्स हेल्प अस। आप यहीं से स्टार्ट करोगे। मसल्स हेल्प अस किस लिए हेल्प करता है? टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वन लाइन आंसर, बहुत ईजी है। टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो कैसे याद करोगे? मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन में क्या होता है? फूड सब्सटेंस को हम लोग हमारा बॉडी यूज करता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपको क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड सब्सटेंस। यहाँ तक पहले याद करो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, that our body can use is called digestion. Very easy. आप एक बार में ये अच्छे से नहीं याद हो रहा है तो 2 times ब्रेक करो आंसर्स को। The process of changing food substances that our body can use is called digestion. Easy children? Now, what is the role of kidney in our body? किडनी क्या काम करता है? फिल्टर की तरह काम करता है और वेस्ट जितना भी फालतू चीज़ होता है उसको रिमूव करता है। तो किडनी वर्क एज फिल्टर्स and remove waste from the blood in the form of urine. तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? किडनीज वर्क एज ए फिल्टर्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, नाउ राइट 2 ways ऑफ ब्रीदिंग करेक्टली। कैसे आप सांस करेक्टली मतलब अच्छे से कैसे ले सकते हो सांस? ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर। हमेशा फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज, और नोज से ब्रीथ करना चाहिए। तो आपको ये वाला जो 2 लाइन्स के आंसर्स है ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करो, फटाफट देखो याद हो जा रहा है। हाउ डू आवर मसल्स हेल्प अस? मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बहुत ईजी है। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस। अब मेरे साथ बोलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, यहाँ तक याद कर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। इजी। What is the role of kidneys in our body? Kidneys work as filters and remove waste from the blood in the form of urine. Okay children, kidneys work as filters and remove waste from the blood in the form of urine. Now, write 2 ways of breathing correctly. Always breathe in fresh air and always breathe through the nose. ठीक है children? So I am giving you 1 day. आप यहाँ तक पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चैप्टर 1 का हम लोग, चैप्टर 2 का वी हैव रिवाइज्ड अप डी सी ए बी, और साथ में वी हैव रिवाइज टाइम टू रिकॉल। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू दिस वन, ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। we are going to do long answer question. So before, let me just give you homework. ये यहाँ तक आपको पूरी अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन, अप टू हियर, ठीक है। देन मैम वी विल आस्क यू वन सरप्राइज टेस्ट, और उसमें बुक खोल के नहीं लिखना है, एग्जाम में एकदम you should be honest to yourself. Learn these answers and write your answers by your own. Okay children, thank you very much. Learn the answer questions. If you feel any problem, please you can
give your reasons or you can give your queries in the WhatsApp. Thank you.